आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में महमिलापुर गांव के वरिष्ठ जाति के लोगों की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। बसवा कल्याण के अल्लाह नगर में स्थित आंगनवाड़ी का बुरा हाल। यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं सुअर, आंख मूंद कर सो रहे हैं सीएमसी अधिकारी। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जहीराबाद में जहीराबाद लॉरी यूनियन और ड्राइवर यूनियन की ओर से निकाली गई रैली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पैम्पलेट वेबसाइट लॉन्च। कांग्रेस बोली मणिपुर से ही शुरू होगी यात्रा। 108 फीट लंबी धूप बत्ती पहुंची बाराबंकी, फूलों से स्वागत। महकेगा अयोध्या का भव्य राम मंदिर। बंगाल को इस्लामिक स्टेट बना रही ममता, किम जोंग उन जैसी तानाशाही, लोकतंत्र बचाने के लिए हटाना होगा, बोले गिरिराज सिंह। अब समाचार विस्तार से। बीदर के नवाद में स्थित पत्रिका भवन में आज बुधवार 10 जनवरी को हमीलापुर गांव के वरिष्ठ जाति के लोगों की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें बीदर तालुका के हमीलापुर ग्राम में एक महीना पहले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के झंडे को निकालने और उनका अपमान करने, इसके अलावा ग्रामवासियों में डर का वातावरण बनाने पर विरोध किया गया। इस अवसर पर उपस्थित हमीलापुर के वरिष्ठ व्यक्तियों ने कहा कि हमीलापुर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के झंडे को निकालने के खिलाफ एक महीना पहले भी प्रेस मीट भी आयोजित कर विरोध किया गया था और जिला अधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया गया था, परंतु अभी तक इस झंडे को निकालने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रेस मीट में कहा गया कि अगर जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग बीदर से हमीलापुर तक पदयात्रा करके घटनास्थल के समीप धरना देंगे। इस अवसर पर रामपुरे, किशोर रामपुरे, महेश रामपुरे, विशाल होन्ना, लक्ष्मण कुंबले, प्रभाकर भोसले, घालेमा रामपुरे, चित्रम्मा रामपुरे और दूसरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದರು। ಮತ್ತೆ ಸಿಪಿಒ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಜಿಪಿ ನಂಬರ್ ಏನೇ 497, ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 45/75 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತು ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀಡಿದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ 26 ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂದು ಜೆಸಿಬಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಮೇಶ್ ಸಾವಳಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು। ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆವಾಗ ಪಿಡಿಒಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪಿಡಿಒ ಪುನಃ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಧಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದರು। ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೆಲಸ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಗಿತ್ತು ಆಗಿತ್ತು। ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಏನಂತಾರೆ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ದಿವಂಗತ ಮನೋಹರ್ ಬಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಇನಾಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಅವಾಗ ಗರ್ಜನೆ ಆಯಿತು, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು। ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಂದ್ರೆ 15 ಮನೆ ಮಾತ್ರ। ಇಷ್ಟು ದಬ್ಬಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 75 ವರ್ಷ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ವರದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ। ನಾವು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ। ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾರು ಶೋಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇನಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ। ಇನಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಇನಾಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವಾಗ? ನಿಜಾಮ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಇನ್ನು ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀಡಿತು। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಮಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಹೋಳಿಯ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಯದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು। ಅವರು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಯಾದನೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು CP ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರ, ನಾವು ಹಮಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಾಗ SI ಮಾದಿಗ ಅಂತೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರಿಶನ್ ಅಂತೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈವಾಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಮಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೀಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಲೆಟರ್ಸು ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು PM ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ, CM ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೆಟರ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾವ. ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಡಿಲೇ ಆಗಕ್ಲತ್ತದ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ DC ಸಾಹೇಬರು 1 ಗಂಟೆನಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಕೊಂಡು ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು 26ನೇ ಜನವರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಚ್ಚಾಳತ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿ ಹಮಿಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಊರಾಗ ಯಾವ ದಲಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಷ್ಟ್ರನಾಗ ಆಯ್ತು. ಮಂದಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರದ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ ನಾಲ್ಕಿನಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಬಾಜು ಹಮಿಲಾಪುರನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕಾಗ್ಲತ್ತೀರಿ? ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಗಲತ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಇವತ್ತು DC साहिब होगी हमिलापुर हिंगा। आज बुधवार 10 जनवरी को बीदर के IB में जय कर्नाटक रक्षणा वेदिकाओं की ओर से डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के खिलाफ अविनाश दिने के नेतृत्व में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें जय कर्नाटक रक्षण वेदिके के अध्यक्ष कल्याण राव गुन्नल्लीकर के अलावा भगत शिंदे, मोहन सागर, विनोद पांचाल, रवि भाविकट्टी और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर बताया गया कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में 2022 से 2024 तक इन 2 वर्षों में 5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अविनाश पूरी तरह से शामिल है। इस प्रेस मीट में बताया गया कि इससे पहले भी माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को सस्पेंड करने के लिए सरकार से मांग की गई थी, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा धरना देने की बात कही गई। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। इधर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में 2022 से 2024 तक 2 साल में 5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट इलीगल हुआ है। खाली खोटी बिल लगा के बिदर माइनॉरिटी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अविनाश इस इलीगल में संपूर्ण उनका योगदान है। लास्ट 2 मंथ से हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में क्या क्या इलीगल हो रहा है इसके बारे में इंक्वायरी करो, उनको सस्पेंड करो और बिदर से ट्रांसफर करो बोल के 2 महीने से हम इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके बारे में हम हायर ऑफिसर को बात भी कर रहे हैं। मगर ये माइनॉरिटी का हायर ऑफिसर है, पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सपोर्ट कर रहे हैं। बिदर ये माइनॉरिटी में ये रीजन आता उसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, उनका लोगों को डेवलपमेंट के लिए शादी महल, चर्च, बौद्ध मंदिर और EDC इतना भवन के लिए करोड़ों रुपए बजट आ रहा, मगर बिदर में वो काम कौन सा भी काम डेवलपमेंट नहीं हो रहा। खाली बिदर का माइनॉरिटी MLA है, मिनिस्टर है, मगर एक भी काम उनको ठीक से नहीं हो रहा। इसके बारे में पूरा इंक्वायरी करो बोल के 18 पॉइंट से हम
श्री सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर हमारे कनाडा के, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेटर भेजे उनको हम डीसी साहब से बिदर से, डीसी साहब से बिदर से, अब इनको इंक्वायरी करो बिदर में माइनॉरिटी के कितना भी लीगल हुआ पूरा इंक्वायरी करो बोल के ये माध्यम से मैं स्टेट गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं हो तो आगे में उग्र स्वरूप का होराटा करता बोल के ये मीडिया के तरफ से मैं उनको चैलेंज करता हूँ। बसवा कल्याण के अल्लाह नगर में स्थित आंगनवाड़ी में जहां पर छोटे बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, यहां पर बद जानवर यानी सुअर भारी संख्या में आ रहे हैं। यहां तक कि यह जानवर आंगनवाड़ी में तक घुस रहे हैं। आंगनवाड़ी की ओर से सीएमसी को 3 जुलाई 2023 और उसके बाद भी इस समस्या के संबंध में एक लेटर भी दिया गया था और कहा गया था कि जानवर आंगनवाड़ी के अंदर आ रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए आंगनवाड़ी के सामने गंदगी की सफाई करें और इन जानवरों को आने से रोकने के लिए कंपाउंड बनाया जाए। परंतु सीएमसी की ओर से आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई काम किया गया। अभी भी सुअर आंगनवाड़ी के अंदर जा रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने आते हैं और इन जानवरों की गंदगी से बच्चे बीमार हो सकते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस विद्या के केंद्र में आने वाले बच्चों के साथ इस तरह की लापरवाही निंदनीय है। सीएमसी अधिकारियों और इलाके के काउंसलर को इस संबंध में ध्यान देते हुए जल्द से जल्द यहाँ की साफ सफाई करनी चाहिए। बसवा कल्याण के केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। बोवेनपल्ली टास्क फोर्स और बोवेनपल्ली पुलिस ने प्रेस मीट में यह खुलासा किया कि 130 किलो गांजे के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक बोलेरो और एक मारुति स्विफ्ट कार जो बिना नंबर प्लेट की थी और 3 सेलफोन जिनकी कुल कीमत 32,50,000 बताई गई। इस अवसर पर कहा कि आए दिन इस तरह के गांजा सप्लायर्स को पुलिस कार्रवाई करते हुए सप्लायर्स को गिरफ्तार कर रही है। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में जहीराबाद लॉरी यूनियन एसोसिएशन और ड्राइवर यूनियन की ओर से हिट एंड रन कानून के खिलाफ एक रैली निकाली गई और केंद्र सरकार से इस काले कानून को वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर लॉरी यूनियन एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद खाजा मियां, ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद अफसर और महासचिव राम रेड्डी ने मीडिया से बात की। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नियामतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। जहीराबाद के ड्राइवरों और ओनरों और जितने भी लारी से जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, सभी का शुक्रिया, क्योंकि आज जो हम किस कानून के लिए उठे हैं वो कानून को बंद करना चाहिए। मोदी जी अपना कानून जो निकाले हैं, गरीबों के ड्राइवरों के ऊपर जुल्म है, 7 साल की सजा, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जो है जुर्माना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि लारी का जो पेमेंट होता है, जो इंश्योरेंस होता है, जो फाइनेंस इसका इंश्योरेंस होता है, जो उसको टैक्स जो भरा जाता है, फिर वो भरने के बाद भी इसको 7 लाख रुपए जो है सो ड्राइवर के ऊपर फाइन लगा रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा। जबकि लारी का जो भी फिटनेस हो या इंश्योरेंस हो, जितना भी है, हम लोग ओनर जो है उसका टैक्स भरते हैं और टैक्स हजारों नहीं लाखों रुपए टैक्स हो गया है अभी, वो भर रहे हैं। भरने के बावजूद भी और ये ड्राइवरों के ऊपर जुल्म कि वो 7 साल की जो 7 लाख रुपए उसके पास अगर रहते हैं तो वो बेचारा ड्राइवर क्यों अपनी ड्राइवरी करेगा? और जब वो 10 साल की सजा के ऊपर जा रहा है, खुदा ना खासा अगर किसी को होता है, ऐसा हादसा हो गया, 10 साल में उसके जिंदगी क्या होंगी? उसके जोरू बच्चे कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन साथ देंगे उसको? मोदी साहब का ये कानून बहुत ही दुखद है, ये बहुत अन्याय है, ये गरीबों के ऊपर जुल्म है। मोदी साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि देश में पहले से जब से तुम आए हैं, जब से तुम 2014 से यहाँ पर हिंदुस्तान में तुम अपनी हुकूमत में आए हैं, यही जुल्म होता गया है। कभी गरीबों पे जुल्म होता गया है, कभी अन्याय पे होता गया है। आखिर तुम्हारा जुल्म आखिर कब तक रहेगा? ये किसी को भी सुकून से जीने नहीं देते। आखिर तुम अपने दोस्तों को सुकून करने के लिए कब तक उनको साथ देंगे? तुम चंद लोगों के वास्ते इन गरीबों का भी पेट मारेंगे। इंश्योरेंस बेच दिए आप, क्या क्या बेच दिए आप?
इंश्योरेंस चलेगा, प्लेन चलेगा, ट्रेन चलेगा, सब बेच के भी। अरे इन गरीबों को तो छोड़िए साहब, इन गरीबों को भी क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या इनके गरीबों के भी 7-7 लाख रुपए लेके क्या अपने अमीर दोस्तों को देना चाह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। मोदी साहब और अमित शाह साहब, आप लोगों को जो है मालूम होना चाहिए कि गरीब आदमी जब उसके रोड के ऊपर जाता है ड्राइवर, उन्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ के हजारों किलोमीटर जाता है अपना पेट भरने के लिए। उन्हें वहां से क्या होता है क्या नहीं होता है, कभी उन मर जाता तो उसका पूछाने हाल कोई नहीं रहता। उसके बच्चे रोड पे रहते साहब, उसके ऊपर जुल्म। उनका होना बोल के कोई ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला किसी को टक्कर देना चाहता, होना बोल के एक्सीडेंट करना चाहता, ऐसा नहीं होता। कौन अपनी मुसीबत लाना चाहता है? अगर गलती से खुदा ना खास्ता नींद में रहता, कुछ भी होता है, कभी भी होता है, हो जाता, कोई होना बोल के तो नहीं करता, हजारों किलोमीटर जाके कोई एक्सीडेंट तो नहीं करता। अगर उसको क्या सजा मिलेंगे साहब? उसकी जिंदगी तबाह है। मैं आप लोगों मोदी साहब के पूरी हुकूमत से, गवर्नमेंट से, बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं, सारे ड्राइवर, सारे ओनर, लारी ओनर, जो भी लाइसेंस, जो भी गाड़ी चलाते हैं, उन सब के तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कानून को जल्द से जल्द जो है सो इसको क्लोज कर दीजिए। मोदी साहब और अमित शाह साहब, आपसे गुजारिश है, तमाम गरीबों की तरफ से आप देखिए, एक गरीब के पीछे 10-10 बच्चे, जोरू बच्चे कहाँ पालेंगे वो लोग? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो है सो ये काले कानून को बंद कर दीजिए। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जब हम गाड़ी रखें, ड्राइवर को रखे, 70,000 रुपये हम साल को इंश्योरेंस बन रहे और 45,000 रुपये टैक्स बन रहे हैं साल को हमारे स्टेट का। जब इतना भरने के बाद और ऑल इंडिया का टैक्स अलग बन रहे, हुकूमत को जो है 1,20,000 रुपये एक गाड़ी को भर रहे हैं हम साल को। फिर भी ये कानून जो लागू करे हैं तो इंश्योरेंस के वास्ते बना रहे हैं हम? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि ड्राइवर ये कर दिया एक्सीडेंट, के बोल रहे कि 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। तो हम इंश्योरेंस जो बना है, इंश्योरेंस क्या काम का है? तो हुकूमत को जब हम 1,20,000 रुपये हम भर रहे हैं साल को, तो हुकूमत को नहीं समझ में आ रहा। आज जो हमारी एक गाड़ी जो चलने से हुकूमत को 1,20,000 रुपये सालाना टैक्स बन रहे हम, टैक्स, इंश्योरेंस, फिटनेस, हर चीज। तो आज हमारे ड्राइवर को क्यों तकलीफ दे रहे? अमित शाह साहब, आप जो गृह मंत्री है, आप जो जुल्म कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये गलत चीज को जो आप ये कर रहे हैं, आज गरीब को जो कुंदल रहे हैं, ये चीज को हम नहीं मानेंगे। आज जो हम ड्राइवर जो एहतजाज कर रहे हैं, आज ड्राइवर ये ड्राइवर भी बल्कि नहीं, हम आरटीसी को लेंगे, हर इस केस पे आंदोलन जो करेंगे कि यहाँ तक के ऑटो को लेंगे, हर चीज को लेके, कार वाले, HR जितने भी है, और जो भी आंदोलन करेंगे। हम आज जो है रोड के ऊपर निकले हैं, कल हम पटरी के ऊपर निकल के ट्रेन को तक रोकेंगे हम, उतना ये करके। आज की तारीख तक जो हम जो ये करे हैं, आगे जो आपको बोल रहे हैं कि कानून वापस लीजिए, जो वापस ले लेंगे तो तुम्हारा भी अच्छा है, गरीब का, ड्राइवर का भी अच्छा है। अगर वापस नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम। इस एक बात करते हुए आप लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी मेरे ड्राइवर भाई हैं, ये कानून को देख के जो भी अपन एहतजाज कर रहे हैं, आल ड्राइवर भाई इन्होंने और हुनर जो भी है, जितने भी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं दिल से। మీడియా మిత్రులకు మాకు సహకరించిన పోలీస్ సిబ్బంది వారికి మా డ్రైవర్ యూనియన్ తరపు నుంచి పేరు పేరున వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాము। ఈరోజు మాకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఏమనగా, ప్రతి ఒక్కరి సమస్య ఇందులోపల ఒక డ్రైవర్ కుటుంబమే కాదండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లోపల ఎన్ని కుటుంబాలు బతుకుతున్నాయనేది ఈ ప్రభుత్వానికి అర్థమవట్లేదు। ఇందులోపల ఒక పొద్దున లేచి పాల క్యాన్ నుండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళే అంబులెన్స్ డ్రైవర్ వరకు ఒక డ్రైవర్ ఉంటాడండి। మేము ట్యాక్సీ యూనియన్ డ్రైవర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము। మా యూనియన్ డ్రైవర్ల నుంచి ప్రతి ఒక్క ట్యాక్సీ యూనియన్ డ్రైవర్ పొద్దున్న లేవగానే ఒక కస్టమర్ తీసుకొని వెళ్తున్నారంటే, ఒక 10 మంది కస్టమర్లు ఉన్నారంటే వాళ్ళ 10 మంది ప్రాణాలు మా చేతిలో ఉన్నట్టు। ఆ 10 మంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్న డ్రైవరే దేవుడు అని అంటారు కదా, ఆ దేవుడికే ఈరోజు అన్యాయం జరుగుతుంటే ఏ ప్రభుత్వం ముందు రాకుండా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుందా? ఈరోజు ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు అందరూ ఈరోజు నా పార్టీ నీ పార్టీ అని గొడవ పడుతున్నారు, కానీ ఈరోజు ఒక లారీ డ్రైవర్ కానీ, ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కానీ, ఒక స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్ కానీ, ఒక ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కానీ అన్యాయం జరుగుతుంది, ఒక రాజకీయ నాయకుడు ముందుకు రావట్లేదు ఎందుకు? अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस ने बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पैम्फलेट में यात्रा के मकसद, रूट और मैप की जानकारी दी गई। इस अवसर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा वेबसाइट भी और न्याय योद्धा कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वेबसाइट में रोज की खबरें आती रहेंगी, साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। इसके अलावा जो लोग यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी उन्हें वेबसाइट पर मिलेगी। अयोध्या में आने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश से कई तरह की चीजें अयोध्या प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित होने पहुंच रही हैं। इस बीच 108 फीट लंबी धूप बत्ती गुजरात से बाराबंकी पहुंची है। इस रात सैकड़ों लोगों ने धूप बत्ती का स्वागत किया। ढोल नगाड़े, फूलों की वर्षा की गई। बता दें कि लोग इस धूप बत्ती के साथ फोटो ले रहे हैं, साथ ही जय श्री राम के लगाए नारे भी लगाए। धूप बत्ती सोमवार को राजस्थान के भरतपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, जहां लोगों ने धूप बत्ती का फूल बरसाकर स्वागत किया। बता दें कि इस 6 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। इसे 6 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। धूप बत्ती गुजरात के बड़ौदा में बनकर तैयार की गई है। इसका वजन 3610 किलो है, जबकि लंबाई 108 फीट है और इसकी चौड़ाई करीब 3.5 फीट है। धूप बत्ती को बनाने में अनेक तरह की जड़ी बूटियां का प्रयोग किया गया है। यह धूप बत्ती करीब 1.5 महीने तक बिना रुके चलेगी। 50 किलोमीटर क्षेत्र में अपनी खुशबू फैलाएगी। धूप बत्ती का निर्माण करने वाले गुजरात निवासी बिहा भरवाड़ ने बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे भेंट करने के लिए इस धूप बत्ती का निर्माण किया गया है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा। ममता बनर्जी इस्लामिक स्टेट बनने पर तुली हुई हैं। उक्त बातें बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। इसके साथ उन्होंने ईडी गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव एवं नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन स्वार्थ के आधार पर बना है और यह इनकी हरकतों से साफ दिख रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा, इंडी गठबंधन में शामिल हर एक लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बताया गया तो कभी
नीतीश कुमार रूठ जाते हैं। कभी कोई और दूसरी ओर राहुल गांधी को यह पता है कि यह गठबंधन होने वाला नहीं है, अर्थात राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त हैं। राजस्थान के भजनलाल सरकार के विधायकों और मंत्रियों में भी बयानवारों की कमी नहीं है। बीजेपी विधायक आचार्य बालमुकुंद के बाद अब मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने अपनी विधानसभा में लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। हालांकि मंत्री महोदय ने बात बड़े लाइट मोड यानी हंसी ठिठोरी में की थी, लेकिन अब उनका बयान वायरल हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र विकास मंत्री खराड़ी ने जिले के नाइक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आप खूब बच्चे पैदा करो, तकलीफ किस बात की है। यह पीएम मोदी का सपना है कि कोई भी भूखा और सिर पर छत के बिना नहीं सोएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को चादर सौंपने वाले हैं, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी गुरुवार 11 जनवरी दोपहर 12:30 चादर को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपने वाले हैं। पीएम मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उनकी भेंट की गई चादर को दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। पीएम पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने अब तक 9 बार अजमेर शरीफ दरगाह को चादर भेंट की है। इस तरह वह गुरुवार को 10वीं बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेंट करने वाले हैं। पिछले साल 811वें उर्स के मौके पर उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह को चादर भेंट की थी। पीएम मोदी ने इसकी तस्वीर भी शेयर की थी, जिसमें उनके साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मौजूद थे। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में महमिलापुर गांव के वरिष्ठ जाति के लोगों की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। बसवा कल्याण के अल्लाह नगर में स्थित आंगनवाड़ी का बुरा हाल। यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं सुअर, आंख मूंद कर सो रहे हैं सीएमसी अधिकारी। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जहीराबाद में जहीराबाद लॉरी यूनियन और ड्राइवर यूनियन की ओर से निकाली गई रैली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पैम्पलेट वेबसाइट लॉन्च। कांग्रेस बोली मणिपुर से ही शुरू होगी यात्रा। 108 फीट लंबी धूप बत्ती पहुंची बाराबंकी, फूलों से स्वागत। महकेगा अयोध्या का भव्य राम मंदिर। बंगाल को इस्लामिक स्टेट बना रही ममता, किम जोंग उन जैसी तानाशाही, लोकतंत्र बचाने के लिए हटाना होगा, बोले गिरिराज सिंह। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।